جی تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں ڈاکٹر عرضے جعفری جو کہ اسپیشلسٹ ہیں ڈائبٹیز اور اینڈوکرائن، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لندن سے، اور ان سے جانیں گے کہ کیا مسائل ہیں ڈائبٹیز اور اوبیسٹی کو لے کے، اور کیونکہ ایک عام عوام کی یہی ایک سمجھ لیں کہ بنیادی ضرورت ہے کہ اس کو ایک پراپر ہیلتھ گائیڈنس ملے، ہیلتھ گائیڈنس ان اے وے کہ اس کو پتہ لگے کہ اس کی صحت کے لیے کیا ضروری ہے، کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کے لینے سے وہ اپنی صحت کو جو ہے مؤثر رکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کو مینٹین رکھ سکتا ہے۔ تو ہم یہ سب کچھ جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ اوبیسٹی اور جو ڈائبٹیز ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر اورزی فرام لنڈن۔ سر تھینک یو فار جوائننگ اس، وی آر ویری تھینکفل ٹو یو فار جوائننگ آور پروگرام دیٹ از سیکنڈ اوپینین، اور ہم اپنے پروگرام میں لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ان کے ہوتے ہیں، جو پرابلمس ہوتے ہیں، اور جیسے کہ ماشاءاللہ آپ ایکسپرٹ ان ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرائن فرام یو کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اوبیسٹی کو بھی خاصا ڈیل کرتے ہیں، کافی آپ کی اس میں ایکسپرٹیز ہیں، پلس آپ برٹش کلینک جو کہ اسلام آباد میں رن کر رہے ہیں اس کے سی ای او ہیں، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ویورز کو گائیڈ کرنے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم ٹو آور شو سر، اینڈ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو پروگرام ہمارا ہے اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم 3 سیگمنٹس کنٹینیو کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے ہمارا ایڈوائس کا، تو ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اس وقت آپ کی ایڈوائس کے منتظر ہیں، تو تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بھی اگر ہمارے ویورز کو کچھ انٹرو دینا چاہیں تو وی ووڈ اپریشیٹ۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے انوائٹ کیا مجھے اس شو پہ۔ میرا نام عرضی جعفری ہے اور میں کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ ہوں بیڈفورڈ شائر، یونائٹڈ کنگڈم میں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک کلینک پاکستان میں شروع کیا ہے برٹش کلینک کے نام سے، تاکہ ہم پاکستان کے لوگوں کو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آف کیئر پرووائڈ کر سکیں ان دا ڈائبٹیز، ہارمون، ویٹ مینجمنٹ اور جنرل میڈیسن کی فیلڈ میں۔ اس کے علاوہ یہ ایک فوڈ کیئر کا بھی ایک ایکسپرٹ سینٹر ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے ایڈوائس۔ سو فرسٹ کویسچن فار دا سیشن ایڈوائس، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ایک جنرل جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ ڈائبٹیز بیسکلی کیا ہے، کیا اس کی وجوہات ہیں اور کیا کمپلیکیشنز ہیں؟ ایک جنرل اوپینین آپ ہمیں دیجیے کہ واٹ از ڈائبٹیز۔ دیکھیں، ڈائبٹیز ایک مرض ہے جس کے اندر ہمارے خون میں شوگر کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے، خاص تناسب سے زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بہت سی مختلف اقسام ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اس کی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ سب سے زیادہ کامن ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کے اندر یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کی تقریباً کچھ محتاط اندازے کے مطابق اور کچھ سروس کے مطابق 1 in 3 ایڈلٹس، مطلب یہ کہ ہر 3 میں سے 1 ایڈلٹ کو شوگر کی بیماری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک دنیا میں یہ پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس کے اندر شوگر کی وجہ سے، ڈائبٹیز کی وجہ سے بہت سی دوسری بیماریاں ہوتی ہیں، جس کے اندر سٹروک، آنکھوں کی بینائی کا جانا، ہارٹ کی بیماری، ہارٹ اٹیک، لیور فیلئر، گردوں کا فیلئر، سٹمک گیسٹروپریسس، اس کے علاوہ پیروں میں زخم اور پیروں کی ایمپیوٹیشن، یہ اس کی کمپلیکیشنز ہیں۔ اگر ہم شوگر کو کنٹرول کر لیں تو ہم ان تمام کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں یہ اتنی زیادہ کیوں ہے۔ میں یہی جاننا چاہوں گی، میرا اگلا جو کویسچن ہے اسی سے جڑا ہے کہ اس کی پاکستان میں پریویلنس کیا ہے، ڈائبٹیز کی پریویلنس پاکستان کے حوالے سے کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ خاصا اس پہ تجربہ رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے آڈینس کو تھوڑا گائیڈ کریں۔ اس کے اندر 1 in 3، جیسے میں نے کہا کہ ہر 3 ایڈلٹس میں 1 کو ڈائبٹیز ہے، جو کہ
दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। अगर हम यूरोप के अंदर इस परसेंटेज को देखें, प्रेवलेंस को देखें, तो ये तकरीबन 5 से 7% के आसपास है, लेकिन पाकिस्तान में ये 30% पे है। ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है और इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन मैं कम से कम 3 से 4 इंपॉर्टेंट को यहां मेंशन करना चाहूंगा। सबसे पहली ये है कि एजुकेशन, हमारे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि उन्होंने क्या खाना है, क्योंकि हमारी डाइट में लेट 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र करना चाहूंगा, जो कि डायबिटीज की वजह है। हमारे लोगों को ये बताने की जरूरत है कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी क्वांटिटी खानी है और प्रोटीन की कितनी क्वांटिटी खानी है और फैट की कितनी क्वांटिटी खानी है। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमने स्लो रिलीज कार्ब्स खाने हैं, क्विक रिलीज कार्ब्स जिनको रिफाइंड कार्ब्स कहते हैं, उनसे परहेज करना है, क्योंकि ये रिफाइंड कार्ब्स की ही एक्सेस क्वांटिटी, ज्यादती की वजह से हमें शुगर का मर्ज होता है। ये है पहली वजह। तो एजुकेशन, पेशेंट एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन, हमारी डाइट के बारे में, यह है सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। नंबर 2 पे मैं कहूंगा कि प्रेग्नेंट औरतों की डायबिटीज को कंट्रोल करना। पाकिस्तान में हम प्रेग्नेंट औरतों की डायबिटीज को, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, हम उसको सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाते। ये एक स्पेशलिस्ट एरिया है जिसके अंदर हमारे पास स्पेशलिस्ट बहुत तादाद में मौजूद नहीं है। इसके लिए जब एक हामला औरत को शुगर होती है तो उससे पैदा होने वाले बच्चे को 20 से 25 साल बाद डायबिटीज हो जाती है। तो अगर हम उस हामला औरत की शुगर को कंट्रोल कर लें तो फिर उससे पैदा होने वाले बच्चे को डायबिटीज का रिस्क बहुत थोड़ा होगा। ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट वजह। तीसरी इंपॉर्टेंट वजह यह है पाकिस्तान में शुगर की कि हमारे लोगों को एक्सरसाइज के बारे में एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसके अंदर हमारी एक्सरसाइज शामिल नहीं है, और ना सिर्फ एक्सरसाइज बल्कि कौन सी किस्म की एक्सरसाइज और कितनी एक्सरसाइज, वो उसके बारे में एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज कम है। इसकी वजह से हमारे खून में शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायबिटीज की सही ट्रीटमेंट। डायबिटीज की अगर गलत ट्रीटमेंट की जाए तो उससे शुगर का मर्ज मजीद बिगड़ जाता है। शुरू में कंट्रोल हो सकता है लेकिन बाद में मजीद बिगड़ जाता है। इसलिए हमें यह जरूरी है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हम प्रोड्यूस करें पाकिस्तान में, जिनको इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेन करें, ताकि वो डायबिटीज की सही ट्रीटमेंट कर सकें। मैं ये जानना चाहूंगी कि कुछ मिथ्स डायबिटीज को लेकर हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि जिनके बाप दादा को डायबिटीज थी तो सिर्फ उन्हीं को होगी। तो इनहेरिटेंस और अपेरेंटली, मतलब बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कुछ लोगों के ख़ानदान में इनहेरिटेंस में भी नहीं होती डायबिटीज़, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि उनको भी हो रही है। तो ये क्या मिथ्स हैं और इसके क्या इंटरलिंक्स हैं? देखिए, ये सारी बातें सही हैं कि जेनेटिक एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पोनेंट होता है कि अगर आपके वालिद वालदा या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज है तो आप में डायबिटीज का रिस्क है। ठीक है, तो जेनेटिक्स तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन क्या आप उस डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर वो जेनेटिक्स माइल्ड शक्ल में है तो हम एक अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल से अपनी डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि हमें डायबिटीज होगी ना, क्योंकि हम एक अच्छी खुराक और एक अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक तरफ जेनेटिक का लिंक जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ एनवायरनमेंट का भी लिंक है। एनवायरनमेंट के अंदर हम शामिल करते हैं हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज। या आप में जेनेटिक्स नहीं भी है
या माइल्डर फॉर्म में है और आप अगर गलत खुराक खा रहे हैं या एक्सरसाइज नहीं कर रहे और सही एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो फिर आपने, और या मोटापे की शिकायत है तो फिर आप में डायबिटीज फिर भी हो सकती है। तो ये तमाम चीजें, डाइट, एक्सरसाइज, जेनेटिक्स, ये तमाम, और इसके अलावा आपकी वालदा में खास तौर पे शुगर की शिकायत जब वो प्रेग्नेंट थी, तो ये तमाम फैक्टर्स डायबिटीज का रिस्क है। अच्छा सर, ये कंट्रोल और मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, इसमें पाकिस्तान का क्या स्कोप है? डायबिटीज ट्रीटमेंट, कंट्रोल, प्रिवेंशन, क्या मेजर्स हैं जो पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं, या क्या मेजर्स हैं जो लेने चाहिए जिनकी कमी है, ताकि इस मर्ज को बढ़ने से, फैलने से रोका जा सके? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है, मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो रहा है। मैं सिर्फ ये आपको बता सकता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। उसके अंदर ये है कि हमें एक नेशनल प्रोग्राम करना चाहिए डायबिटीज के ऊपर चारों सूबों के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों को पब्लिक एजुकेशन दें अबाउट डाइट एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, इसकी शदीद कमी है क्योंकि हमारी 21st सेंचुरी में अब ऐसी डाइट्स अवेलेबल हैं, ऐसे ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जिनके अंदर शुगर की और कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। आम दुनिया में इस तरह के खाने नहीं खाए जाते। जिस तरह, जितना मीठा हमारे मीठों में शामिल है, इतना मीठा दूसरे ममालिक के मीठों में शामिल नहीं होता। जितना ऑयल हमारे खानों में शामिल है, उतना ऑयल दूसरे ममालिक के खानों में नहीं होता। अब ये चीजें हमें अपने लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है ताकि हम मोटापे से और डायबिटीज से बच सकें, और इसके लिए एक नेशनल प्रोग्राम की जरूरत है। अगर आप मेरी राय लें तो इसको हमें डाइट को और न्यूट्रिशन को एज अ सब्जेक्ट स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना चाहिए अगर हम एक हेल्दी माशरा बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा फिर ये तो प्रिवेंशन के अंदर आ गया, और फिर ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास, हमें अपने डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि पिछले 5-10 साल में शुगर की दवाइयां चेंज हो चुकी हैं और इसकी शदीद जरूरत है कि हमारे डॉक्टर्स को हमारी नई दवाइयों के बारे में पता हो ताकि डायबिटीज का सही इलाज किया जा सके। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। यकीनन हमारे मुआशरे में क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, सेशंस नहीं होते, लोगों को एजुकेट इस हवाले से नहीं किया जाता। और आज जैसे आपने बात की कि माँ के पेट से मुंतकिल होने वाली डायबिटीज़ जो बच्चे में होती है, और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको इस हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं है। और ऐसे सेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एक मदर के हवाले से, उसकी फैमिली के हवाले से देने चाहिए कि किस तरह से, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनको कंट्रोल करके, जैसे आपने अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही कि खाने में हमारे पास जितना मीठा खाया जाता है इंटरनेशनली या जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ मीठे का वो रेशो नहीं होता। और जो हमारी खुराक में ऑयल और जितना मुरगन ग़िज़ाएँ हम लोग लेते हैं, तो ये सब एक बेसिक फैक्टर हैं डायबिटीज़ की प्रीवेलेंस का, जो कि हमारे मुल्क में अभी इस पे अवेयरनेस और इस पे नॉलेज, और जैसा कि आपने कहा कि तालीम के थ्रू, मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी इस चीज़ की अवेयरनेस फ्रॉम द अर्ली एज देनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास वेट करते हैं कि कोई मसला आएगा तो फिर उसका हल जो है बनेगा। लेकिन अगर यही चीज़ें शुरू से लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए तो एक अच्छा हम स्टेप ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और जो है अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ हमारा फर्स्ट सेगमेंट इस प्रोग्राम का ख़त्म होता है, और हम इंतहाई मशकूर हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब लंदन से मौजूद हैं जो कि डायबिटीज़ और एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट हैं। मैं ख़ुसूसी तौर पे आपकी शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर औरैज़ी के, जो आप हमारे साथ मौजूद हैं, अपने कीमती औकात में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे लोगों के लिए एक मुफीद मालूमात फराहम की। जज़ाकल्लाह खैर। और कंटिन्यू करते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट के साथ।